इम्पोर्टेंट चैप्टर, फिर से बोल रही हूँ, रोज मेरा काम है याद दिलाना, तो आज फिर याद दिला रही हूँ. So what 3 chapters: acid bases salts, periodic classification, and chemical reaction and equation. You don't forget these 3 chapters. You have to do it very nicely. Okay. So let's start without wasting our time. तो यहाँ पे आपका the screen is no wait. Not this one. Wait, 1 second. Okay, so we were seeing the salts, isn't that? And types of salts आपका शायद करा दिया मैंने, क्योंकि weak combination और कौन से combination of salt से कैसा salt बनता है ये हो चुका था, isn't that? Weak salt, acidic salts or basic salts. Yes or no? Yes or no? I'm asking something, isn't that? Yes or no? Punya, are you able to hear me or not? Able to hear. Then why you are not giving me the reply? Okay, starting the class थोड़ा सा warm up कर लेते हैं. Tell me, ammonium chloride is which type of salt? Ammonium chloride, NH4Cl. NH4Cl is which type of salt? NH4Cl is which type of salt? Neutral salt. Not neutral. Not neutral. NH4Cl is which type of salt? Acid. Yes, it is acidic salt, because NH4Cl is made up of ammonium hydroxide and hydrochloric acid. Ammonium hydroxide and hydrochloric acid, और ammonium hydroxide weak base है, hydrochloric acid strong acid है. तो जाहिर सी बात है जो solution होगा कैसा होगा, acidic होगा, और salt कैसा हो जाएगा, basic हो जाएगा. Okay, same case if I am talking about aluminium sulfate. Aluminium sulfate, Suvrat, aluminium sulfate is which type of salt? Aluminium sulfate. Subrat, are you able to hear me or not? Yes. Gaurav. Yes, ma'am. Aluminium sulfate is which type of salt, beta? Acidic, basic, or neutral? Aluminium sulfate. Aluminium sulfate. Don't know. Okay, Punya, you tell me. Ma'am, acidic because aluminium is very reactive metal. Aluminium hydroxide and sulfuric acid के combination से बना है. Okay. Sulfuric acid is a strong acid and aluminium hydroxide is a weak base. That's why the resulting solution will be acidic and the solution will be acidic pH will be less than 7. तो अभी तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन याद रखने हैं सॉल्ट्स में कि इसका जो सॉल्ट दिया है उसका एसिडिक पीएच कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, एसिड है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है. ओके, न्यूट्रल सिर्फ 2 कंडीशंस में न्यूट्रल होगा, या तो दोनों एसिड बेस स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों एसिड बेस वीक हो. सपोज इफ आई एम टॉकिंग KCl, आई एम सेइंग पोटेशियम क्लोराइड, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है. Then another condition is there that both will be weak. Like if I am talking about ammonium carbonate. If I am talking ammonium carbonate, like ammonia, it is made up of ammonium hydroxide and carbonic acid. Both are weak. Ammonium carbonate, if I am talking, ammonium hydroxide and carbonic acid both are weak. In that case also it will be neutral. तो याद रखना कि अगर दोनों एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो न्यूट्रल रहेगा, दोनों एसिड बेस वीक रहेंगे तो भी न्यूट्रल रहेगा सॉल्ट.
लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया बेस के कंपैरिजन में तो सॉल्ट एसिडिक रहेगा, और अगर बेस का स्ट्रॉन्ग हो गया एसिड के कंपैरिजन में तो सॉल्ट बेसिक रहेगा। इसके अलावा इस टॉपिक में से एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको सॉल्ट दे दे और उसका कंस्टिट्यूएंट एसिड या बेस बनाने बोला, तो मैंने आपको अभी बोल दिया, बस आपको अमोनियम कार्बोनेट है, ये है। सपोज आपको इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमोनियम क्लोराइड, टेल मी व्हिच इज द एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन इट। अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए कौन सा एसिड और बेस लगेगा? गिव मी द आंसर थ्रू द चैट। अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए कौन सा एसिड और बेस लगेगा? गिव मी द आंसर थ्रू द चैट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। गिव मी द आंसर थ्रू द चैट। अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट लगेगा? सॉरी, अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए विच एसिड एंड बेस इज रिक्वायर्ड? व्हाई देयर इज नो रिप्लाई टिल नाउ? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? करण, हर्षिता, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई? Why I am not getting any reply? Please give the answer to the chat. I am waiting for the reply. Or otherwise, on that particular day, I called 2 children. Immediately after the class, today I will call everyone. I will ask their parents that what is the reason that you are not replying in the class if you are present. Priyam? Yes or no, at least you can tell me. Who can tell me the answer? Punya? Ma'am, don't know. Okay, कोई बात। मैंने आपसे पूछा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी अमोनियम क्लोराइड है मैंने लिया, इसका मैंने आपको बोला है कि आप कंस्टिट्यूएंट बताइए, सॉल्ट बताइए, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड लिया है, ये कि कौन से एसिड और कौन से बेस बना। मैंने आपको बताया है कि जो भी सॉल्ट रहेगा उसका पॉजिटिव पार्ट कौन देता है? बेस। जो भी पॉजिटिव पार्ट रहेगा, पॉजिटिव पार्ट इज गिवन बाय बेस एंड नेगेटिव पार्ट जो रहेगा दैट विल बी गिवन बाय, जो नेगेटिव पार्ट है वो देता है कौन? एसिड। उसको कौन देता है? एसिड। तो इसमें आप बता सकते हो कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है? Which is the positive part here? Positive is ammonia and basic and negative is chlorine. Okay, the positive part is ammonium and the chlorine, negative part is the chlorine. तो अमोनियम वाला कौन सा बेस होता है? अमोनियम वाला कौन सा बेस है? अमोनियम वाला कौन सा बेस होता है? अभी आप डिस्कस किया अमोनियम वाला कौन सा बेस हमने डिस्कस किया? अमोनियम कौन सा बेस था? Which base we discussed? Ammonium hydroxide. ओके, और Cl वाला कौन सा एसिड डिस्कस किया है हमने? Cl मैम हाइड्रोक्लोराइड एसिड, HCl. Now it is correct. Now again एक और सॉल्ट आप लोग कीजिए. Now discuss it again. One more salt I am giving it. Give salt, sodium carbonate. Sodium carbonate. Sodium carbonate. Sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कौन सा एसिड और बेस लगेगा? फॉर्मूला बताओ। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कौन सा एसिड और बेस लगेगा? अगेन वैसे ही निकालो। Gaurav, what you are sending me the message? I am not getting it. Why you are sending me this now? What you want to ask? सोडियम कार्बोनेट का बताइए तब तक। कौन है इसमें पॉजिटिव पार्ट? Who is the positive part here? Karan? Ma'am, I know the acid which is CaCO3 and don't know the base. CaCO3 is not an acid. एसिड में क्या रहेगा? H तो रहना ही है ना, तो यहाँ पे एसिड जो रहेगा वो दैट विल बी एसिड. एसिड विल बी H2CO3 कार्बोनिक एसिड. क्यों? क्योंकि CO3 वाला कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड. ओके, H2CO3.
एंड Na वाला कौन सा बेस है? Na वाला बेस है आपका NaOH. यस, करेक्ट, NaOH. Okay, so these are the acid and base which are required to form the sodium carbonate. Okay, clear? So this is a carbonic acid and अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना. Okay, so either you can get the salt or you have to tell the constituent acid and base, or you can also get the given salt. What will be the pH? It will be more than 7, less than 7, or equal to 7. That means it is acid or base or neutral. Okay, clear? अब next का देखते हैं इसी में. This was the case. अब इसी से related है आपका family of salts. Okay, when we are talking about the family of salts. Family of salts का मतलब होता है कि if a particular salts, a group of salts are having either common cation or common anion. अगर किसी salt का जो cation या anion common होगा तो वो एक ही family को belong करते हैं. Suppose here if I am talking about like sodium chloride and calcium chloride. Okay, sodium chloride and calcium chloride both are having chlorine anion common, so that's why they belong to chloride family. Okay, and in calcium chloride and calcium sulfate, cation is common. That means calcium is common. That's why they belong to calcium family. In the zinc chloride and zinc sulfate, zinc is common. That's why they belong to zinc family. So a family of salt is decided by the radicals. That means positive or the negative part. If the either they should have cation common or they should have anion common. Okay, on that basis the family is decided. If they are having common cation, they will belong to same family, or they should have common anion, then only they will belong to the same family. Okay, ma'am, excuse me, ma'am. yes. So ma'am, this NaCl, CaCl2 and sorry ma'am, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सॉल्ट अगर एक फैमिली का नहीं है तो वो दूसरे फैमिली को बिलोंग नहीं कर सकता. जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड फैमिली में भी आ रहा है, कैल्शियम फैमिली में भी आ रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें एनायन तो दूसरे के साथ कॉमन है, लेकिन कैटायन भी दूसरे के साथ कॉमन है कि नहीं. तो ये हो सकता है. सेम वे सोडियम क्लोराइड कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ सोडियम फैमिली, क्योंकि सोडियम के भी तो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं. सोडियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना, सोडियम जिंकेट हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट हो गया. सो दे कैन फॉर्म एन अनदर family also. Okay, so a salt which is in a particular family can also belong to the other family also. लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फैमिली क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कैटायन कॉमन है या फिर एनायन कॉमन है. अगर कैटायन कॉमन है तो वो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, और एनायन कॉमन है तो वो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं. और फैमिली का नाम उस कैटायन और एनायन के बेसिस पे होगा. जैसे यहाँ पे क्लोराइड कॉमन है इसलिए क्लोराइड फैमिली, कैल्शियम कॉमन है कैल्शियम फैमिली, जिंक कॉमन है जिंक फैमिली. ओके, दिस इज द केस ऑफ द फैमिली ऑफ द सॉल्ट्स. ओके, डन. And acidic, basic and neutral salts I already discussed, so I'm not going to discuss it again. Okay, next is preparation of the salts. This is the important topic, that is preparation of the salts. Salts are the अब इस टॉपिक में से मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो किसके रहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यूजेस, फॉर्मेशन, एमसीए, उसी का ये क्वेश्चन लिखो, यही आते हैं. Okay, so this year we are having the formation of we are having common salt and its salts produced by the common salt. Okay, हमको उस common salt से ही produce होने वाले दूसरे salts के बारे में discuss करना है. So the common salt is basically the common table salt which we are having in our home. Okay, so this common salt NaCl ये कैसे प्रिपेयर होता है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है. किसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा कॉमन सॉल्ट? सोडियम एंड क्लोराइड. सोडियम एंड क्लोराइड है, ठीक है, लेकिन वो कहां से आ रहा है? कौन से एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा है? यस, सोडियम क्लोराइड किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? फिर से वापस उसी में जाओ, अब भी पढ़ाया टॉपिक है, उसको फिर से पूछने से आप लोगों को नहीं आ रहा है. आई सेड सोडियम क्लोराइड है, इसको बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट, कौन सा एसिड और बेस लगेगा? To make NaCl, which acid and which base will be required? NaOH and HCl. Yes, NaOH and
HCl. सो NaOH और HCl को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनता है, NaCl बनेगा. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने से क्या बनता है, NaCl बनता है. ये तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन हो गया. लैबोरेटरी प्रिपरेशन नहीं करना है तो कॉमन जनरल तरीका भी होता है. जनरल तरीका कहाँ से होता है, जब हम सी वाटर का इवोपरेशन करते हैं, लेगून्स क्रिएट करते हैं, वहां पे सी वाटर कलेक्ट करते हैं, इवोपरेट करते हैं, तो भी हमारा क्या मिलता है, सॉल्ट मिल जाता है. और ये जो NaCl है वो बेसिकली एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि NaCl को बनाने के लिए NaOH और HCl लग रहा है और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है. और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर किसी सॉल्ट को बनाने के लिए दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. अब ये सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल, सोडियम क्लोराइड से बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल है. हमको पहला जो सॉल्ट पढ़ना है सोडियम क्लोराइड से वो है हमारा सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉस्टिक सोडा. उसका कॉमन नेम याद रखना, कॉस्टिक सोडा बोलेंगे तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द caustic soda, that is sodium hydroxide. Okay, clear. So when for caustic soda preparation we are taking brine solution, the cold concentrated solution of aqueous solution of cold concentrated solution of aqueous solution of sodium chloride is called as brine. brine जो रहता है बेसिकली aqueous solution of sodium chloride. aqueous solution रहेगा किसका, सोडियम क्लोराइड का. इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, caustic soda. ओके, क्लियर. अब ये इसका इक्वेशन याद रखना और इंपॉर्टेंट याद रखना कि कॉस्टिक सोडा के लिए क्लोर अल्कली प्रोसेस लिखता है. सो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट यू राइट क्लोर अल्कली प्रोसेस डैश कॉस्टिक सोडा, क्लोर अल्कली प्रोसेस डैश कॉस्टिक सोडा. और फॉर्मूला लिख लीजिए NaOH. ओके, तो याद रखना कि कहीं भी अगर क्लोर अल्कली प्रोसेस डिस्कस हुआ है तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है. देन द इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर दिस इज द इक्वेशन फॉर द क्लोर अल्कली प्रोसेस. दैट मींस NaCl on electrolysis will give NaOH, Cl2 and H2. Okay, Ma'am, I have a doubt that why HCl is not formed. HCl is not formed as there is Cl2 and H2. बेटा ये जब प्रोसेस को अगर डिस्कस करोगे तो फर्स्ट लेट में होगी ना. सो अगर हम बात करते हैं तो क्या है हमारा, जब हम लोग वेट, हाँ, जब NaCl को जब आप पानी में डालते हो तो NaCl जब किसमें टूट जाता है, NaCl टूट जाता है किसमें, NaCl will break into sodium and chlorine. Okay, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा. Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है. ठीक है, वैसे ही अब हमने क्या लिया, एक्वस सोल्यूशन लिया है ना. एक्वस सोल्यूशन लिया है मतलब यहाँ वाटर भी होगा, तो वाटर जो है वो टूट जाता है किसमें, H+ और OH में. ओके, ये टूटते हैं, इस तरीके से टूटते हैं. अब आपके पास इलेक्ट्रोड कौन से हैं, आपके पास इलेक्ट्रोड है, आपके पास इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, है ना. कैथोड और एक एनोड होता है. कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नहीं. आपका एनोड जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, कैथोड जो रहेगा वो आपका नेगेटिव रहेगा. अब यहाँ पे क्या होता है, ये आयंस है. अब जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ पे जाएंगे, आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, दैट मींस कैथोड के पास जाएंगे. और जो नेगेटिव आयंस है वो किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, यानी एनोड के पास. तो जब ये हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या आपको कंपटीशन होगा दोनों के बीच में, ये Na+ और H+ के पे की दोनों. अब आयंस तो दोनों जाएंगे लेकिन रिएक्शन कौन शो करेगा, वो उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. पावर पोटेंशियल उसको बोलते हैं
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कौन सा आयंस कितनी जल्दी जाके रिएक्शन शो करेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, H+ जो होता है वो जल्दी रिएक्शन शो करता है कैथोड में, इसलिए वो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम बनाता है। इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन एटम। लेकिन हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल होता है, तो जैसे ही दूसरा हाइड्रोजन आएगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन एटम बनाएगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और कैथोड से निकल जाएंगे। अब बारी आती है किसकी, एनोड की। एनोड में कौन है, Cl- और OH- आयन। तो सेम वैसे ही Cl- जो है वो अपनी रिएक्टिविटी के कारण एनोड में जाकर रिएक्शन शो करेगा, और वो क्या करेगा, Cl- जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कहाँ पे, एनोड में जाके, और Cl एटम बना लेगा। अब Cl एटम भी अनस्टेबल होता है, तो जैसे ही दूसरा क्लोराइड आयन आएगा तो ये जो क्लोरीन उससे भी जो क्लोरीन एटम बनेगा, ये दोनों जुड़ के आप क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना के उड़ जाएंगे। अब सोल्यूशन में कौन बचा, Na और OH, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, कॉस्टिक सोडा। अब क्लियर है? यस मैम। ओके, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि ऑन विच इलेक्ट्रोड क्लोरीन गैस इज रिलीज एंड विच इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, कि कौन से इलेक्ट्रोड में क्या रिलीज होता है। तो आपको अभी मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड में प्रोड्यूस होता है, और क्लोरीन गैस जो होता है वो एनोड में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस, द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। अब इसके जो यूजर्स हैं, यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रोड, अब कोई भी सॉल्ट का जो क्वेश्चन होता है आप देखे होंगे कि एग्जाम में कि वो इनडायरेक्ट पूछता है। इनडायरेक्ट का मतलब उसके छोटे छोटे यूज दे देगा, जैसे कि अ सॉल्ट विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, दैट मींस caustic soda. A salt which is used in the degreasing of metals, caustic soda. A soap which is used in the manufacturing of paper, that is caustic soda. तो ये जो तीन यूज मैंने अंडरलाइन करके लिखे हैं, डिग्रीसिंग ऑफ मेटल, सोप एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये जो अंडरलाइन किया ये याद रखना, क्योंकि ये इसके कॉमन यूज है। यूसेस याद करने का फायदा ये है कि एक यूज अगर आपको क्वेश्चन बनना पूछने के लिए ये पूछता है तो बाकी दोनों यूज लिखने बोलेगा। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे सपोज इफ दिस क्वेश्चन ओनली इफ आई एम टेलिंग name the salt which is used for the preparation of soap, write its chemical equation, chemical name, and also write the two uses beside the use which is mentioned in the question. यानी जो क्वेश्चन में मेंशन है उस यूज को छोड़ के भी आपको दो यूज लिखने पड़ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे अंडरलाइन यूजेस है ये आप याद रखना, दिस आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो मैम बट NaOH is a base. Yes. We use it to. Yes, तो क्या हुआ? We are acting as, in this case, is acting as a salt. So why, as it is a base? क्या लिखा है? So we are going to family of salts, na? We are so not why we are which are basic. We are discussing chemicals obtained from sodium chloride. सोडियम क्लोराइड से कैसे कैसे सॉल्ट बन सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, केमिकल्स कौन कौन से बनेंगे, सॉल्ट, हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट्स नहीं क्रिएट करें। फैमिली ऑफ सॉल्ट एक छोटा सा अलग सा टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, yes ma'am. Next is the bleaching powder. The bleaching powder is calcium oxychloride, CaOCl2। फिर से बोल रही हूँ, गूगल का आंसर मत लिख देना। गूगल में आपको दो आंसर दिए हैं, एक CaO2Cl2 दिया, वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, वो ये नहीं है। वो फर्दर चेंज होके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, जो है फाइनल ब्लीचिंग पाउडर। तो ये है एग्जैक्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो सारे सॉल्ट्स का केमिकल नेम, फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, तभी तो आप दूसरा उसका इक्वेशन लिख पाओगे। ओके, सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम एंड CaOCl2 इज द फॉर्मूला। ओके, एंड हाँ, इसका एक येलोइश कलर का सॉल्ट है, तो येलोइश कलर का सॉल्ट यही है, देखो यहाँ पे येलोइश व्हाइट इन कलर लिखा हुआ है। सो रिमेंबर दिस, इट इज a yellowish white salt. Okay, येलोइश व्हाइट सॉल्ट जो हो रहा है वो येलोइश व्हाइट कलर का ब्रैकेट में लिख लो, इट इज येलोइश व्हाइट इन कलर। तो अगर येलोइश व्हाइट कलर का सॉल्ट X लिखा है, उसका प्रिपरेशन लिखो, ऐसा आया, और या फिर उसमें बताएगा कि स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन आ रहा है, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये दोनों ही क्या है आपका, किसके बारे में है, ये
ब्लीचिंग पाउडर, अगर ऐसे दोनों कोई पॉइंट आता है मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लेक्ड लाइन में क्लोरीन गैस पास करेंगे, एंड व्हेन वी पास क्लोरीन गैस इन द स्लेक्ड लाइन, it will form calcium oxychloride. It will form calcium oxychloride. Okay, clear? When you pass chlorine gas in the slaked lime, it will form calcium oxychloride. Okay, and जो aqueous solution, हाँ अब इसमें से एक क्वेश्चन जो आता है, one more question which is asked. Wait, हाँ, where it is? What will happen when you will mix calcium oxychloride with water? Can any write at the equation of calcium oxychloride with water? What will be formed when calcium bleaching powder reacts with, when bleaching powder reacts with, when bleaching powder react with water? When bleaching powder react with water? Give me the answer to the chat section quickly. Chlorine gas. Chlorine gas will be released. And yes, I am waiting for the answer. Reply. Calcium, bleaching powder का reaction with water. What will happen when bleaching powder reacts with water? CaOH2 will be formed. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और क्लोरीन गैस, OH2 का फॉर्मूला सही नहीं, गलत नहीं, ठीक है। या वेट, क्या है आंसर? अच्छा अच्छा अच्छा, why no answers, only 3 replies and that is also unrelated to the topic. I asked you कि आपका ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप वाटर डालोगे तो क्या बनेगा? When you will add bleaching powder to the water, it will form calcium hydroxide and chlorine gas. Okay, calcium hydroxide और chlorine gas बनाएगा. This is one more. I will show you the question. The bleaching powder से कौन-कौन से, एक क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, one more question see in the screen. Bleaching powder is kept open in air. ये क्वेश्चन भी याद रखना. What will happen when bleaching powder is kept open in air? Okay. ब्लीचिंग पाउडर को जब आप एयर में एक्सपोज करोगे तो क्या होगा? These 2 questions. Please give me the answers quickly. Bleaching powder is exposed to air. What will happen? And why I am not getting answers till now? किसी को नहीं आता तो नहीं आता भाई. Tell me, I will explain. calcium oxide and chlorine is separate. Yes, I am not able to hear. Who is telling the answer, because I am not able to hear? Ma'am, please explain. Okay. So यहाँ पे क्या मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा कि एक आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? तो रिमेंबर दैट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इन वाटर फॉर्म अ बेसिक सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के कारण वो क्या बनाएगा? आपका
बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखा होगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ये देखो यहाँ लिखा है, गॉट इट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने आपसे ये पूछा कि ब्लीचिंग पाउडर को हम जब एयर में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा। जब आप ब्लीचिंग पाउडर को एयर में एक्सपोज करते हो देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ब्लीचिंग पाउडर को जब आप एयर में एक्सपोज करते हो देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, याद रखना, द ब्लीचिंग पाउडर विल फॉर्म ऑन एक्सपोजर टू एयर। I am writing it here on the whiteboard, otherwise you will not remember. ठीक है बेटा, I am writing it here. ब्लीचिंग पाउडर को जब आप एयर में एक्सपोज करते हो, bleaching powder is when held exposed in air, then it will react with carbon dioxide to produce calcium carbonate and chlorine gas. Okay, this is the reaction. तो याद रखना कि ब्लीचिंग पाउडर को जब एयर में एक्सपोज करोगे क्या होगा, इक्वेशन पूछा, व्हाट विल हैपन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू एयर, सो यू विल राइट दैट ब्लीचिंग पाउडर व्हेन एक्सपोज टू एयर इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। अंडरस्टूड? So this is the equation. Now next, after bleaching powder, uses of bleaching powder, in uses of bleaching powder में आपको क्या लिखना है कि it is a bleaching effect. It is सबसे main important use है इसका कि it is used for the disinfectant of clean water. ओके, तो ये याद रखना, ये यूज सबसे कॉमन यूज है जो क्वेश्चन पेपर में भी आप उठा के देखोगे, नेम द सॉल्ट विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, सो दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट यूज, रिमेंबर दिस। इसके अलावा तो कॉमन यूज आप लिख मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हो, ब्लीचिंग एजेंट फॉर वुड एंड पल्प पेपर इंडस्ट्री, उसका ब्लीचिंग ही है काम, तो आप वो भी डाल सकते हो कॉमन। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को वो भी जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में काई बोलते हैं ना, जो दीवार वगैरह मॉस वगैरह जमता है उसको भी रिमूव करने के लिए यूज होता है। कहीं पे घास वगैरह ज्यादा है, ग्रासेस ज्यादा हो गई है तो वहां पे भी आप इसको डाल सकते हो। ओके, दिस आर द कॉमन यूजेस, बट द इंपॉर्टेंट वन इज डिसइंफेक्टेंट ऑफ क्लीन वाटर। तो अगर आपका डिसइंफेक्शन वाला कुछ टॉपिक आया सो यू विल डू दिस, write the name of this particular salt. Okay, so the next salt which we are going to discuss is after that baking soda. Baking soda आपका याद रखना, what is the difference between baking soda and baking powder? Baking soda is sodium bicarbonate, whereas baking powder is a mixture of sodium bicarbonate and tartaric acid. Okay, so baking powder is a mixture of baking soda and tartaric acid. बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड क्या बन जाता है आपका, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ओके, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड गिव्स बेकिंग पाउडर। तो अगर ऐसा पहले 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, सो यू विल राइट दिस। ओके, बेकिंग पाउडर से सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ओके, टू मेक द बेकिंग सोडा व्हाट विल यू डू, वी विल पास द अमोनियम गैस इन द ब्राइन सोल्यूशन। जब आप अमोनिया गैस को ब्राइन सोल्यूशन में पास करते हो तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ओके, व्हेन यू आर पासिंग CO2 gas and ammonia gas in the brine solution it forms ammonium chloride and sodium carbonate. This process is also called as Solvay process. तो वहां लिख लेना, क्लोरअल्कली हम कॉस्टिक सोडा के लिए और Solvay process बेकिंग सोडा के लिए। Okay, it is also called as Solvay process. It is also called as Solvay process. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप इक्वेशन लिख लो ना सीधा। सो जब आप ब्राइन सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करते हो देन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म। ओके, so and in this the carbon dioxide which is required is obtained from the calcium oxide, क्विक लाइन से मिलता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्लियर है इतना? अब इस बेकिंग सोडा के अगर मैं यूसेस पे जाऊं तो इस बेकिंग सोडा में हमारा क्या है, बेकिंग सोडा का पहला यूज है कि ये एक एंटासिड के फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि ये क्या है बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए हम इसको एंटासिड यूज करते हैं। तो अ सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड एज एन एंटासिड बेकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर।
ओके, बेकिंग पाउडर नहीं है भाई, बेकिंग सोडा है। ये मत लिख के आ जाना कि एंटासिड के फॉर्म में बेकिंग पाउडर यूज होता है, उसमें तो एसिड मिक्स है तो वो तो और एसिडिटी को बढ़ा देगा। सो बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ओके, यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ओके, तो ये जो मैं यूज फॉर मेकिंग दैट पकोड़ास एंड ऑल इट इज यूज्ड। ओके, सो दैट इट इज। तो अगर ऐसा कुछ कुकिंग पकोड़ा वगैरह का नाम दे दिया है और आपको बोला कौन सा सॉल्ट है, तो बेकिंग पाउडर मत लिखना, बेकिंग सोडा यूज होता है। ओके, clear? So these three are the common use which are being used to ask the baking soda. Next, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर तो किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है, और इसका जो दोनों का प्रिपरेशन का एक ही तरीका है। अगर आपको इक्वेशन फॉर बेकिंग पाउडर आया कि हाउ बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, तो भी उसमें यही इक्वेशन लिखना और नीचे एक पॉइंट ऐड कर देना कि दिस पर्टिकुलर सोडियम बाइकार्बोनेट इज मिक्स्ड विद टार्टरिक एसिड। खत्म, आपको और कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, दोनों के लिए इक्वेशन कॉमन है। ओके, क्लियर? और बेकिंग पाउडर क्यों यूज किया जाता है? बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन द केक्स, यूज्ड फॉर मेकिंग केक। एंड व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केक? बिकॉज जब हम सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो वो गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट रिलीज करता है। ओके, और ये जो सोडियम कार्बोनेट रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, जिसके कारण जो है बिटरनेस बढ़ जाती है केक की। तो इस बिटरनेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि उस बेकिंग पाउडर के अंदर क्या रहता है, टार्टरिक एसिड रहता है। ये टार्टरिक एसिड जाके क्या करेगा, इस जो ये जो वॉशिंग सोडा रिलीज हुआ है सोडियम कार्बोनेट, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। अब आप देख लो कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ CO2 गैस रिलीज इज जस्ट डबल। आप दो प्रोसेस, अगर आप बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हो तो दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, एक तो ये डिकम्पोजिशन से और एक एसिड के साथ रिएक्शन से, यानी कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज। अब गैस का अमाउंट बढ़ेगा तो केक जो है वो ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। दूसरी चीज, जब टार्टरिक एसिड जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है सोडियम टार्टरिक, उसका एक प्लेसेंट टेस्ट रहता है। वो टेस्ट के कारण जो सिंपल जो केक जो रहता है ना, उसकी टेस्ट बढ़ जाती है। अगर आप कोई एसेंस नहीं डालोगे केक में तो भी आप देखोगे कि केक जब बनता है बिना एसेंस के भी बनाओगे ना, हल्की हल्की खुशबू आती है। वो खुशबू किसकी रहती है, सोडियम टार्टरेट की रहती है। ओके, clear? So we are using baking powder because it is in this acid is there, tartaric acid is there, which neutralizes the soda ash which is produced in the reaction, and the amount of carbon dioxide released is also increased. Okay, ये किसका हुआ, बेकिंग पाउडर का हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात की जाए तो वॉशिंग सोडा जो है सॉल्वेट प्रोसेस का एक्सटेंशन है। सॉल्वेट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमने ब्राइन सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास किया था तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना था। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश। ओके, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट को जब गरम सोडियम कार्बोनेट जो सोडा ऐश बनाया उसमें आप अगर आप हाइड्रेट करोगे तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाएंगे और हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि क्या कहलाएगा, वॉशिंग सोडा कहलाएगा। ओके, क्लियर? अब बिना 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के वो क्या है, सोडा ऐश है। बिना 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वो सोडा ऐश है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? Why 10th B is not replying anything? Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. ओके, अभी क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में रिवीजन होगा तो पता चल जाएगा कितना क्लियर है क्या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब आपका बारी आती है वॉशिंग सोडा के बाद। वॉशिंग सोडा का यूज है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अगर कहीं पे भी अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि विच सॉल्ट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो याद रखना कि वो कौन सा है, वॉशिंग सोडा है। तो इसके अलावा तो क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स वगैरह के लिए तो यूज होता ही होता है, लेकिन ये ज्यादातर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए होगा। ओके, क्लियर? तो ये आप इससे रिलेटेड है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें 10 वर्ड्स जो यूज हुआ है, 10H2O, वो एक्चुअली क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप पूछोगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट